It all started just a month back. Back at Meraki, we were making a documentary. So मैंने सबको पूरी दुनिया को बता रखा था कि मैं पहाड़ जा रही हूँ, पहाड़ पे जा रही हूँ. Mountains I call it. I do not take a name of a particular destination because everything is so similar. कोई भी पहाड़ जाओ तो it welcomes you with such open heart. सो सबने मुझसे पूछा कि ओशिका व्हेन आर यू एग्जैक्टली लीविंग बिकॉज वी कि ये डॉक्यूमेंट्री ख़त्म हो जाए तुम्हारे जाने से पहले. सो आई लाइक यार कैसे जाऊँ, पैसे नहीं, ऐसे झूठ का भौकाल मारती फिर रही हूँ मैं. सो थॉट यू नो दैट I'll go and collect charity from people and collect money somehow and then just run away. But then Piyush boss, so we all talk crap हमेशा. So I joked, I said कि एक काम करो यार प्लीज़ तुम ही पैसे दे दो, मैं घूमने चली जाऊँगी. And then this man takes this crap seriously and then he's like कि, and I'm like हाँ दे दो. He tells me कि मुझे क्या मिलेगा. And then I have DSLR from past 4 years, but I am that monkey. वो Facebook पे monkey वाला एक photo होता है ना, so because I've been using it automatic mode. So being the same monkey, I tell my boss that give me the cameras, and shoot and all that stuff. And then knowing that I am the same monkey, he somehow creates magic. So the next when we come back to the studio at Meraki, whiteboard पे he starts writing escape and I'm like यार ये कौन सा project है, मुझे तो बताया नहीं and all that. फिर he's like कि you wanted to go right and I'm like हाँ. He's like I'm sending you and I'm like what, समझ नहीं आ रहा यार मुझे. He's like just go, you wanted to go and so I was so fed up at that point of my life. इतनी गर्मी थी, there was so much of struggle, खुद की journey, personal problems, professional understanding between people who are working together. I really wanted to escape and Piyush get opportunity to escape. So now the idea came कि we'll make our own show, one girl with different cameras going all alone, set on her own. But then this girl was trained in just 3 days wherein I learned how to change lens, aperture, ISO, shutter speed, blah blah blah. I was like पता नहीं मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. So the journey started on 20th of June and then मुझे जिस दिन जाना था उस दिन बहुत ही अजीब सी चीज़ हुई. पूरे जर्नी में there has been spiritual force who has been guiding me and guarding me also at the same time. So जाना था उसके एक रात पहले I was feeling so nervous, so excited, डर भी लग रहा था at time. But then I just read a note on Facebook उसमें Piyush had mentioned that it was the same day when years back he had passed away and I got so emotional. इतना सारा प्रेशर आने लगा मुझे अपने ऊपर, डर वर सारा चला गया. एंड देन आई जस्ट टोल्ड हिम यू नो व्हाट, आई विल मेक यू फील प्राउड. योर फादर और हिज स्पिरिट और वट एवर इट इज, ही विल बी देयर विथ मी. सो बहुत स्टूपिड स्टाफ. आई वेंट टू द स्टेशन ऑब्वियसली ऑल अलोन. पता चला ट्रेन 1 घंटे लेट है. फिर हुआ 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, फाइनली ट्रेन 6 घंटे बाद आई. ओके एंड आई वाज जस्ट सिटिंग ऑन द स्टेशन डूइंग नथिंग, ट्राइंग टू कैप्चर एंड टाइम लैप्सेस एंड ऑल दैट. सो मेरा पूरा प्लान स्पॉयल हो गया. जो मेरा स्केड्यूल था, मैंने सोचा था कि आई विल गो टू दिस प्लेस कॉल्ड चोपता, बट अब ट्रेन वॉज सो लेट दैट आई कैन नॉट गो देयर. सो आई चेंज प्लान्स एंड आई थॉट कि चलो पहले देहरादून तो पहुँचते हैं. सो आई वेंट टू माई कज़न्स प्लेस एंड spent my night there. The next day I had to start for Rishikesh. So my cousin जिसका पैर टूटा हुआ था takes me to Rishikesh, driving his own car. बीच में का पेट्रोल ख़त्म हुआ and somehow some nice uncle man comes, he takes me to the petrol pump, we buy the petrol, pour into the car,
it starts. So मेरी जर्नी सच में तब हुई जब मेरे कज़न ने मुझे ऋषिकेश के एक चौराहे पे उतारा. इज़ लाइक कि दीदी अब आप यहाँ से आगे चल जाओ, जगह मिल जाएगी रहने को. तो मुझे पता नहीं था कि जाना कहाँ है. होशिका वेर, हेलो वेर. कुछ आइडिया नहीं था यार ऋषिकेश क्या है. सीरियसली मैंने इतनी बार सुना था, बहुत सारे दोस्त यो टाइप राफ्टिंग वाफ्टिंग करते हैं जो भी. जर्नी स्टार्टेड व्हेन आई जस्ट वेव्ड माई हैंड एंड अ पुलिस वाले अंकल स्टॉप्ड हिज स्कूटी एंड मैं उनकी स्कूटी पे बैठी. मैंने बोला कि अंकल मुझे कहीं भी आके होटल उतार दो. ही इज़ लाइक अच्छा आप अकेले हो. मैंने कहा हाँ मैं अकेले हूँ. एंड देन ही कि आश्रम चलेगा. आई वाज लाइक हाँ आश्रम चलेगा. So I get down at this ashram and I later found out that it was one of the best places to stay in Rishikesh according to Planet India and that stuff. Then Rishikesh की journey start हुई बहुत ही सुंदर. When I crossed Ram Jhulapura, I reached to this beautiful place called Parmarth जहाँ की बहुत ज़्यादा famous आरती होती है. तो आरती से पहले एक बहुत अच्छा पार्ट हुआ. आई टेल माई फ्रेंड्स, आई कीप टेलिंग माई फ्रेंड्स कि प्लीज़ शादी कर लो. आई जस्ट लव बीइंग अ पार्ट ऑफ मैरिज. आई नॉट हैव एनी इंटेंट टू गेट मैरिड सून. सो वहाँ पे एक कपल की शादी थी. वो देख के तो मुझे लगा वाह, मतलब यही तो मुझे देखना था पता नहीं परसों से. एंड देन वहीं पे गंगा आरती हो रही है. खूब सारे लोग, ऑलमोस्ट 5 लोग छोटी सी जगह पे, और इतना ज़्यादा खूबसूरत म्यूज़िक बज रहा था वहाँ पे. एक्चुअली जो पंडित लोग होते हैं वो गाना गाते हैं तब पूरा. और देयर इज़ समथिंग सो स्ट्रॉन्ग एंड फुल. आई एम वेरी स्पिरिचुअल ऑल्सो, दैट इज़ वाई आई फील ऑल दिस वेरी स्ट्रांगली. बट मुझे लगा बस होशिका और कुछ नहीं चाहिए, कहीं एस्केप नहीं. तो हो गया था. इट इज़ सो पीसफुल एंड सीरीन. बहुत अजीब चीज़ है कि आसपास इतनी भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़, और लोग धक्का वक्का भी दे रहे हैं. स्टिल यू आर इन सो मच ऑफ पीस. It was one of the amazing moments of my journey. एंड देन आई वेंट टू अनदर प्लेस. एक मंदिर था जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था 7-8 साल का. अमित नाम था उसका. क्या तो भाई साहब वो लड़का गाना गा रहा था. जब वो गाना गा रहा था, यू कैन फील दैट देयर इज समथिंग यू विच इज कनेक्टिंग टू गॉड. यू फील so much of bliss at one moment. ऋषिकेश मुझे लगा था कि जैसे मैं पहुंची थी, इतनी सारी भीड़ देख के मुझे लगा हे राम ये कैसी जगह होगी. बट देन सच बात है, आई फील सो मच जेलस ऑफ पीपल who stay in such places wherein you close your eyes and then you'll reach heaven. I went to another temple called भूत टेम्पल, जो बहुत ऊंचा था. बहुत ऊंचा. मतलब चढ़ने में तो मेरी एकदम लग. जैसे ही उस मंदिर के द मंदिर हैज़ सो मेनी फ्लोर्स. हाँ, जैसे मंदिर के 5th फ्लोर पे मैं चढ़ी, आई कुड सी पूरा ऋषिकेश. इट इज़ सो हेवनली. और वहाँ पे कुछ बिल्कुल भी शोर नहीं था, बस मंदिर के घंटे की आवाज़ आ रही थी. बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छी जगह है वो. फिर आई इवन वेंट टू नॉट एग्जैक्टली अ घाट बट गंगा किनारे. और पानी की इतनी तेज़ है. वाटर इज़ सो डैम पावरफुल. मतलब लोग नॉर्मली पानी को दे टेक इट लाइटली. आई हैव सीन पीपल throwing water bottles here and there, wasting water. But go to Rishikesh, look at Ganga ji. She'll make you realize that how damn powerful she is. Nature बहुत strong है. मैंने जल्दी किसी से सुना था कि बहुत ज़्यादा इंसान ढूंढने लगता है ना जब नेचर में, तो भगवान एक थप्पड़ मारेगा खींच के एंड सब कुछ सही हो जाएगा. थोड़ा सबक तो सीखना पड़ता है. बट yes, if you accept nature with your open eyes, keep environment clean and just feel what the wind is telling you or what the water is trying to convey to you. It is one amazing experience. मतलब ऋषिकेश ने मेरा एक दिन में दिल भर दिया था. एकदम ही सुंदर जगह.
फिर एक और जगह में गई जिसे लिटिल बुद्धा कैफ़े कहते हैं. वहाँ पे सारे अंग्रेज़ ही अंग्रेज़, बहुत सारे अंग्रेज़ थे. So there was one man near me. He was a Goan. So he came up to me and he's like, "Can I sit?" And I was like, "Yeah, sure." So he started talking about spirituality, that I can feel, Oshika, that you have so much power and all that. We started talking about spirituality, meditation, and other stuff. And this is for girls out there. Okay, for me, the journey is about meeting people, but then you have to keep your on. So this person tells me, Oshika, you know what? I will take you to this secluded place wherein I'll teach you amazing form of meditation where you will feel love here till here. And there will be nobody around and all that. I was like, what? I'm not being judgmental, but girls, open your brains and then try. And I always listen to my heart and mind also at the same time. I also like, I'll come to meet you and all that. Obviously I will not go. पता नहीं कौन सा मेडिटेशन सीखा था वो आदमी मुझे. ऐसी चीज़ें होती रहती हैं. Finally, Rishikesh came to an end. The next day, I had to leave for this place called Chopta. Rishikesh is almost 200 kilometers. पहुँचने में 8 घंटे लगते हैं. जैसे ऋषिकेश से मेरी बस आगे बढ़ी, I was in another world. पहाड़ पहाड़ पहाड़, बीच में से नदी बह रही है और मुझे तो बहुत ही टाइप फीलिंग आ जाती है कि मतलब इसीलिए मेरा जन्म हुआ था एंड ऑल दैट, यही देखने के लिए. सो मेरे लिए हमें कभी भी डेस्टिनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रही है. मोर इम्पॉर्टेंट इज, एंड यू नो व्हाट, द बेस्ट पार्ट इज फॉर 8 hours आई एम इन द बस. ओके, नोबडी टू टॉक टू. आई डू नॉट इवन पुट हेडफोन्स इन माई ईयर एंड लिसन टू म्यूजिक बिकॉज द विंड्स आर सम अदर म्यूजिक and I can talk to myself and I can feel that the big huge mountain is treating me like his lover and carries her, making me smile and all that. I know it might sound fun. सो चोपता में आई हैड टू स्टे एट वन कैंप. तो टैक्सी वाले ने मुझे उतारा. आसपास काले काले पहाड़ हैं, कैंप है बीच में, बट every time I think about it, I feel so vulnerable. As I got down at the camp, I realized that I am alone in middle of a jungle with 3 strange men. मेरी टीम ने मुझे I had 3 SIM cards. I had 2 dongles, but nothing was working. I opened my camera and I could not even talk to my team. I felt so weak. And I started crying that time also. I would tell Piyush that, that I'm putting my best. समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल. मुझे डर लग रहा था कि कहीं कुछ मुझे हो ना जाए. बहुत ऊपर थी वो जगह, नीचे जाने के लिए टैक्सी भी नहीं थी. और मुझे कैमरा फोकस भी करने नहीं आ पा रहा था. मैंने जो सब कुछ सीखा था. But I said, that if you believe yourself, it will always help you and guide you.
पंछी कौन तेरा गा